Assalamu alaikum everyone. This is Mavish Khan. Welcome to Spotlight. I hope you're all doing fine. आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस की डाइटिंग के ऊपर, जो हेल्थी मील्स होते हैं, जो हेल्थी न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्थी होंगे तो आप बाहर से भी खूबसूरत दिखेंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कम्युनिटी में अच्छी खासी पॉपुलर हैं। शी इज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी इज द ओनर ऑफ मॉडेस्ट न्यूट्रिशन। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता जहीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम Mavish, how are you? I'm good and welcome to Spotlight. Thank you. Thank you for having me. It's an honor to have you और आज बहुत सारे हम आपसे questions करने वाले हैं। तो सबसे पहले we're gonna start off with where did you get your education from? Okay. So basically my education was in the US. I studied from Wayne State University in Michigan. Okay. So I started off as an undergraduate. Before I didn't know what I wanted to do. I tried everything. Yeah. And then I stumbled upon nutrition. And nutrition sounded really fascinating to me. So I did the program. I actually started doing research with phytochemicals, things like spices, haldi, on how to cure lung cancer and pancreatic cancer. So that's where my background is. I did research, and then after a while, I decided it's enough with rats and mice. Because my research was on with them. Many people used to ask me things like, "What should I eat?" And that training wasn't given to us as a nutrition. Being part of nutrition food sciences, we learn what happens inside the body, but not what you can do. So when do you eat. actually get to learn that? That's when I joined the dietetic program. Okay. So it involves what you teach people, and it involves exactly. So it's a 2-year internship program where you work in hospitals with doctors, and you learn on the job. So how did you enjoy that? Oh, I love doing that. Yeah. Yeah, that's basically what brought me to what I'm doing today, because I thought I'll be a scientist, but I dropped all of that and decided, no, I want to teach people how to live healthy. आई नो इस तरह से बहुत दफा होता है कि यू नो आपके अंदर का जो टैलेंट होता है, जो अंदर का शौक होता है, यू डोंट फाइंड आउट अंटिल यू लाइक गेट इनटू समथिंग, और जाते हम किसी चीज में एंड यू एंड अप डूइंग समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग फैंटास्टिक जस्ट लाइक यू आर। सो आपकी जो सर्विसेज इज कॉल्ड मॉडेस्ट न्यूट्रिशन। कैन यू टेल अ बिट अबाउट दैट कि क्या सर्विसेज है, व्हाट्स देयर? Okay, so Modest Nutrition is basically a private clinic that I own. My motto or my philosophy is empowering women to nourish themselves first, so that they can nurture their families. Yeah. So my goal is teaching women, especially. I mean, it's for everybody, but I start with women because we are the center of our families. Exactly. Center of our homes. Exactly. What we teach, if I teach a woman something, she will teach her family, and that will translate into future. Exactly. और आपको पता है जो हमारी जो घर की मॉम्स होती हैं वो तो जो है वो सारी जॉब्स कर रही होती हैं, वो डॉक्टर भी होती हैं, वो सब कुछ होती हैं घर की, और उसी मेन बंदे को अगर आप सिखा दें तो फिर वो पूरी फैमिली को सही से मेंटेन करके चलेगी। एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दैट, सो what sort of plans are there? जैसे कि आपके पास आते हैं लोग, are they pregnant women आती हैं पूछने को कि what should they follow, या फिर after having a baby a lot of women they want to lose weight, right? तो उसके लिए like what other services you have there? So basically my services include a range. I try to help from all life cycles. So it does start with pregnancy. Usually a lot of women who are pregnant or who are trying to conceive come to me. Most of the patients who come to me, either they are coming through a referral through a doctor, from a family doctor, or they come to me by self-referral, so they refer themselves. So is there like a walk-in option for them, or do they always have to have a doctor's referral letter? They don't always have to have a reference letter. They can book an appointment. Book an appointment. All right. Okay. So I'm appointment based. Okay. So pregnancy is one. Then I basically help when they deliver and have a healthy baby. Yes. I help them, teach them what to eat, to have a good flow of the milk, and how to feed the baby, and eventually when the baby grows up, I help transition them from nursing to
solid foods. And then eventually जब बच्चा 1.5 year का हो जाता है, they start becoming picky. So I help manage. अभी मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे आने वाला था कि जो हमारे बच्चे होते हैं 1 to 5 years old जो स्पेशली होते हैं, तो उसमें ये होता है कि यूजुअली मॉम्स आर लाइक उनको बस दूध दे देते हैं कि चलो नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं. सो इज इट इम्पोर्टेंट कि वो कुछ खाएं? Exactly. After a certain age, जब बच्चे solids खाने लगते हैं, it is important that moms and families make a schedule of meals, even depending on their motor skills. बच्चे का you can basically idea is आप family meals introduce करें बच्चे को as early as possible. Even from the time we shift from milk to solid foods, family meals से start करें. Because usually यहाँ पे मैंने देखा कि people start with like baby food, जैसे वो बाहर से लेकर आते हैं, even उस पे होता है organic, but I feel like it's not very organic. उसमें some sort of chemical तो होते ही हैं. तो बहुत सी moms जो है वो घर में भी मतलब vegetables को fruits को blend करके they make like baby food. और ये भी जो हमारे बड़े होते थे वो भी कहते थे बच्चों को घर में जो भी खाना बना है उनको वो टेस्ट कराओ ताकि उनके टेस्ट बड्स जो है वो आए. तो उसके लिए आपका क्या है कि मतलब इज इट रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस एज में बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है, राइट? तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी समहाउ इंक्रीज करता है अगर आप उनको खिला रहे हैं तो. एब्सोल्युटली. तो आप बेसिकली एग्जैक्टली जैसा आपने कहा कि व्हेन यू फीड चिल्ड्रन व्हाट यू ईट, उसमें वैरायटी बहुत होती है. जो हम बाहर से लाते हैं, व्हाट वी ब्रिंग फ्रॉम pureed food or formulas, all of that, they don't have they have good nutrition but they don't have variety. Yes. So हमारे खाने में variety होती है. हम गोश्त खाते हैं, हम vegetables खाते हैं. So that is all important कि later on बच्चा जाकर हर चीज ट्राई करे, हर चीज खाए. अच्छा, और यहाँ पे क्या रीजन है वो जो शुरू में कहते हैं कि आप न्यू बॉर्न बेबी को मतलब, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि आप उनको एग जो है वो अंडा टेस्ट करवा देते हैं, मगर यहाँ पे क्यों मना है? तो एग खास तौर पे मना नहीं है. मिल्क स्पेशली काउज मिल्क रेकमेंड है कि 1 year तक बच्चा नहीं नॉट हैव काउज मिल्क फॉर द फर्स्ट ईयर, just as a precaution कि develop उनकी नहीं होती है सारी immunity and there might be something in it that can cause allergic reactions. आजकल there's a lot of sensitivities and allergies to foods, तो as a prevention वो कहते हैं कि not for prevention के मतलब बच्चे को क्योंकि थोड़ा वो टाइम हो जाए, वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए. अच्छा, तो वो जो हमारे जो बहुत ही प्यारे पिकी ईटर्स हैं जो बहुत सारे घरों में होते हैं और वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से दूर भागते हैं, तो क्या ऐसी चीज उनको दे सकते हैं कि उनकी वो उस चीज की कमी जो है वो पूरी हो जाए? तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भागते हैं उन्हें the only best solution for this is आप reintroduce करते रहे वो food. जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा जब भी हमेशा खाए, बट अगर आप वो इंट्रोड्यूस करते रहे, बिकॉज बच्चों का क्या होता है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स they're not gonna like it because उसमें टेस्ट वो नहीं होती है जो sugary foods में होती है, उनकी आदत हो जाती है. But the point is if they see you as a family, as a mother and a father eating these foods, वो इवेंचुअली वो टच करेंगे उनको. तो बेसिकली आपका फ्यूचर, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में मेरा बच्चा ये खाए. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो अभी खाए. द बॉडी, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि दे आर गोइंग टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग दैट दे नीड. जो उनको नहीं चाहिए दे आर नॉट गोइंग टू अब्सॉर्ब. तो अगर हमारे फूड में थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन है, दे विल टेक इट इन. देयर बॉडी इज डिजाइन दैट वे. तो हमारा फोकस यही है कि फ्यूचर उनका अच्छा हो. तो इट टेक्स अबाउट 20 times फॉर a food to be introduced before the child is going to actually put it in his mouth. Wow. So 20 times. तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा vegetables जल्दी खाने लगे, then you have to keep introducing it over and over. एक ना एक दिन वो खाएगा. तो ये सुन ले जो मॉम्स हैं कि बस एक दफा या 2 दफा ट्राई करने से नहीं होगा, आपने उसको जो है बच्चे को बार बार ट्राई करना है और एक दिन इंशाल्लाह वो क्यूकम्बर या टोमेटो जरूर खाएगा. अच्छा, तो ये जो विटामिन की सप्लीमेंट्स होती हैं जो कहते हैं कि बच्चों को देनी चाहिए, जैसे लाइक सेंट्रम भी होती है, और बिकॉज हम लोगों को हलाल वाली देखनी होती है, सो आर दे इम्पोर्टेंट कि अगर जो बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं अप टू 12 years old के जो बच्चे, उनको देनी जरूरी है मल्टीविटामिन? नॉट नेसेसरी. बच्चों को बिल्कुल उनकी बॉडी हमारे से अच्छी होती है एक्चुअली, सो दे डू नॉट रियली नीड एनी
foreign supplements. आपके फूड से हर चीज उनको मिल जाती है. अच्छा, और अब बात करते हैं जैसे बहुत सारे डाइट प्लान्स आए हुए हैं, तो उसमें कुछ लोग लिक्विड डाइट ट्राई करते हैं, कुछ लोग कीटो डाइट ट्राई करते हैं, मगर हर डाइट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. सो आपके के ख्याल से व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव डाइट फ्रॉम ऑल ऑफ देम? ओके, सो आई डोंट लाइक टू एंडोर्स एनी डाइट. द वर्ड डाइट बहुत And I don't think वो लास्ट करता है. लोग ट्राई करते हैं 1 वीक में, then they're like no, you know what, it's not working. ना वेट कम हो रहा है और ना हमें जिंदगी जीने में मजा. कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप हेल्थी भी खाएं, आपको लगे भी नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं और वेट भी कम हो रहा है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो जस्ट आपकी बात खत्म करने के लिए, वेट लॉस के जो डाइट्स होते हैं, ट्राई नॉट टू गेट इनटू दैट. लोग बहुत प्रमोट करते हैं उसको, एंड मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि स्पेशली जो कीटो डाइट है, इफ यू नॉट फॉलोइंग इट इन प्रोटोकॉल, उसमें बेसिकली क्या होता है कि यू लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू लूज अ लॉट ऑफ मसल. हमारा मसल इज डिजाइंड टू गिव अस एनर्जी. तो इफ यू आर लूजिंग मसल मास, देन इवेंचुअली हमारा वेट गेन वीकनेस होती है, एंड वेट गेन. जो हम डाइट छोड़ देते हैं, the weight comes back with a lot more baggage, with a lot more interest. तो इसका basically prevention ये है कि first of all mind से अपने आप को हटा दे के you need to look, you need to have a certain weight. आपका basically goal ये होना चाहिए कि I have to eat healthy. Weight will come off eventually. आपके माइंड में जितना सोचेंगे वेट के बारे में, उतना स्ट्रेस बनेगा और स्ट्रेस से वेट इंक्रीज होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट थिंकिंग अबाउट वेट एज माय फोकस, बट बीइंग हेल्थी, और इट्स जस्ट choosing the right patterns. Basically the time per खाएं, like make sure you eat breakfast, you make sure you eat a snack and you eat lunch. So every 3 to 4 hours अगर आप कुछ light खाएं, and just watch your portions. That's very important, क्योंकि डाइटिंग में वैरायटी खत्म हो जाती है, and variety is very important. हमारी बॉडी को हर कलर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से फायदा है. So try to stay away from diet, but still eat healthy and work out. एंड अच्छा, तो ये बहुत सारी अब मार्केट में लाइक ऑर्गेनिक भी डाइटिंग की पिल्स वगैरह भी आ गई हैं, जिसमें वो कहते हैं कि केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल. तो क्या उसमें वाकई में आर दे वेरी नेचुरल, उसमें या होते हैं केमिकल? नहीं, एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट, फूड इंडस्ट्री does not regulate medications. Supplements. Medications are regulated. Supplements are not regulated. Health Canada has some guidelines कि आप ऐसे things हो, but they are not regulated. And what about those teas जिनका कहते हैं ना कि ये टी पी लो, slimming teas, तो do they work? मैंने तो सिर्फ green tea का ही सुना है, but there are a lot of teas. Green tea health के लिए अच्छी होती है. They have antioxidants. So all of these teas, they are good for you, but what they promise is not necessarily going to be delivered. मतलब if they're saying it's for weight loss, you have to be a little cautious, because there's no one pill that can lose weight. वरना हर कोई वही करता है, and everyone would have been successful. But to some extent, it is helpful in terms of health and overall. So शाइस्ता से हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमें इन्होंने काफी काम की बातें बताई. सो शाइस्ता, बिफोर आई लेट यू गो, आप हमारी ऑडियंस को प्लीज अपनी सर्विसेज के बारे में एक दफा और बता दें, अपने प्रोफाइल का, सो दे कैन फॉलो यू एंड दे कैन कॉन्टेक्ट यू इफ दे वांट टू टॉक टू यू. एब्सोल्युटली. सो लाइक आई सेड अर्लियर, आई डू एक्सेप्ट self referrals. So for people who are looking for a healthy weight, my focus is really trying to help you make your own meal plan. So I do have services. First of all, I see clients one-on-one. I also see them online. कि जो लोग out of, मैं मिल्टन में काम करती हूँ, so I do have an office there. But if someone wants to see me outside of Milton, हम online services provide करते हैं. Also, for people who do not want to invest in coming to see a dietitian, because I have packages. I have 6 months and 1 year packages. Just every step of the way I teach you, give you demos of how to design your own meal plan for healthy weight and weight loss and better general health.
और आपके पेज का नाम है मॉरिस न्यूट्रिशन, राइट? बिल्कुल। सो आप इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। शी इज अ रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन एंड अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। तो इनसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं ऐसी गेस्ट को बुलाने वाली हूँ जो अपने अलावा तो बाकी सबकी जो है वो पिक्चर्स लेती हैं। शी इज अ वेरी ग्रेट फोटोग्राफर। आई एम गोना सी यू गाइज आफ्टर द ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर।